अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा से फिर मसला कश्मीर उनकी उमंगों और यूएन करारदादों के मुताबिक हल कराने का मुतालबा। जनरल असम्बली के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कश्मीर का मसला अवाम के ख्वाहिश और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत सबसे पहले कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल करे। आलमी बरादरी भारत की मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी तहकीकात करे। फाशिस्ट भारतीय हुकूमत की जानिब से इश्ताल अंगेजी की गई तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। 2 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights. This action is in violation of the UN Charter, Council resolutions, and international law, particularly the 4th Geneva Convention. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. In order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. There will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारत का मकरूह चेहरा और नाम नेहाद सेक्युलरिज्म दुनिया के सामने आया कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, भारत में गांधी और नेहरू का नजरिया आरएसएस के नजरिए से बदल चुका है। इसी नजरिए ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इस्लामोफोबिया रियासती पॉलिसी बन चुकी है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। आलमी बरादरी भारत में इन जराइम की तहकीकात करे। This assembly should declare an international day to combat Islamophobia. One country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. They believed that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra. In 1992, the RS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat. वजीर आज़म ने अपने खिताब में जहां भारतीय जराइम से पर्दा उठाया, वहीं फलस्तीन के मसले का हल खत्ते और दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान फलस्तीन में 2 रियासती हल की हिमायत करता है। एक आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो, इस मसले का हल है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। तनाज़े अफगानिस्तान का फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर से बिगाड़ पैदा करने वाले अनासर को अमन अमल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। Mr. President, Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a 2-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters. Mr. President, Pakistan's desire for peace in our region is also manifest in our efforts to promote a political solution in Afghanistan.
I have consistently maintained over the past 2 decades that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. After almost 2 decades of war, it is imperative not to allow spoilers within and outside Afghanistan to subvert the peace process. Peace and stability in Afghanistan will open new opportunities for development and regional connectivity. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, कोरोना वायरस, मनी लॉन्ड्रिंग और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बात की। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, क्योंकि तनाज़ात बढ़ने के बाद शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। हमारी खारिजा पॉलिसी हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात और मसाइल का हल बातचीत है। पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी पर बात करते हुए उनका कहना था कि न सिर्फ कोरोना वायरस से निपटने में कामयाब हुए, बल्कि मईशत को भी इस्तेहकाम दिया। आज पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने वाले ममालिक की फहरिस्त में खड़ा है। इमरान खान ने आलमी बरादरी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ और इंसानी हुकूक की बात नहीं कर सकते। जनरल असम्बली को गैर कानूनी रकूम की मुंतकली के लिए काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों को खतरात हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी जिम्मेदारी समझता है। बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली अफसोसनाक है। इससे फलस्तीनी अवाम को धचका लगा। वो समझते हैं कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए खलीजी ममालिक के आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता में आलमी क़वानीन के तहत हकीकी अमन के क़याम के लिए फलस्तीन से इसराइल का नाजायज खात्मा खत्म करवाना और 1967 की हैसियत को बहाल करना जरूरी होगा। फलस्तीनी सदर ने कहा कि मशरक़ वस्ता में कोई तब्दीली फलस्तीनी अवाम की मर्जी के बगैर पायदार नहीं होगी। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का दबंग खिताब, भारत परेशान हो गया। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भारतीय मंदूब फरार हो गए, कोई उनको भी हौसला दे, फवाद चौधरी ने तंज किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शेर की तरह धाड़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर पर भारतीय वफ्द रो रहा था। जनरल असम्बली से वजीर आजम का दबंग खिताब, भारत परेशान हो गया। वजीर आजम के खिताब के दौरान भारतीय मंदूब फरार, कोई इनको भी हौसला दे, फवाद चौधरी का तंज। वजीर आजम पाकिस्तान शेर की तरह धाड़े, वजीर आजम की तकरीर पर भारतीय वफ्द रो रहा था। वजीर आजम का तारीखी खिताब कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम ने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम ने RSS का इंतहा पसंद नजरिया बेनकाब कर दिया। वजीर आजम का तारीखी खिताब कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम ने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम ने RSS का इंतहा पसंद नजरिया बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी से राबता करके पाक अफगान ताल्लुकात मजबूत बनाने और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान होने वाले राबते के बाद एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। मुस्बत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन मुआहिदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी तशद्दुद में कमी के लिए अफगान जमातों के किरदार की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तमाम अफगान धड़े सियासी मुआहदे के लिए मिलकर काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार ज़ुल्क़रनैन शीना का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों के हुकूक सलब कर रखे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा, कश्मीरी हक़ खुद इरादियत हासिल करने में कामयाब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार ज़ुल्क़रनैन शीना ने भारतीय बयान पर जवाब दिया कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा न था और न कभी होगा। भारतीय तसल्लुत में 70,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं, मजलूमों को हक़ खुद इरादियत जरूर मिलेगा। आलमी फोरम में दो टोक अंदाज में कह दिया, भारत इन तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ
रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण ने दहशतगर्दों की मुआवनत का एतराफ किया। भारत की रियासती दहशतगर्दी से उसके अपने अवाम भी महफूज नहीं है। भारत के लिए बेहतर होगा कि अपना घर ठीक करे। भारत बराबरी और बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर इलाकाई अमन की जिद्दोजहद करे। भारत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। पारवा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की फायरिंग से 8 साल के बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। 2020 में भारतीय फौज ने अब तक 2340 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इससे कबल कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। सीनियर भारतीय सिफारतकार को एहतजाजी मरासला थमाया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की बेवकूफाना हरकतें 2003 के सीज़फायर मुआहिदे समेत इंसानी अजमत और वकार, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और क़वानीन और पेशा वराना फौजी तर्ज अमल के बरअक्स और इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ की तकरीर को हुकूमत और फौज में दरारें डालने की साजिश करार दे दिया। कहते हैं मियां नवाज शरीफ की तकरीर भारत के बयान की अक्कास है। नवाज शरीफ खेल से बाहर हो चुके, वो चाहते हैं कि न खेलूंगा और न खेलने दूंगा। नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरारें डालने की साजिश करार। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम के नवाज शरीफ पर तनकीदी वार। वजीर आजम का कहना है कि नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। वो फौज और हुकूमत के दरमियान तारीखी हमांगी को तोड़ना चाहते हैं। ऑपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई कराना है। मुझे पाक फौज से होने वाली मुलाकातों का इल्म होता है। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, ऑपोजिशन से खतरा नहीं। कुछ वजीर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। नून लीग हो या शीन लीग, ये लोग सिर्फ खानदानी सियासत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को ऑपोजिशन वाले इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं। वजीर आजम ने 2 टोक मौकफ अपनाया कि करप्शन पर किसी को NRO नहीं दूंगा। अगर ऑपोजिशन के इस्तीफे आए तो इन नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन करा देंगे। मेरा विजन ऐसा पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल न हो। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर की परेशानियां मजीद बढ़ गई। मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस, बड़ा इंकशाफ हो गया। प्राइवेट बैंक की ब्रांच में 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, मनी लॉन्ड्रिंग में मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का बड़ा इंकशाफ हो गया। साबिक वजीर आला की जानिब से निजी बैंक की मुस्लिम टाउन ब्रांच में 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई। नैब ज़राए के मुताबिक 4 ट्रांजैक्शंस में सलमान शहबाज का नाम भी मौजूद है, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब की जानिब से 4 मशकूक ट्रांजैक्शंस जनवरी 2017 में की गई। 5वीं मशकूक ट्रांजैक्शन 28 अप्रैल 2017 में हुई। ज़राए का कहना है कि साबिक वजीर आला पंजाब और सलमान शहबाज इन मशकूक ट्रांजैक्शंस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नैब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने ये तमाम ट्रांजैक्शंस उस वक्त की जब वो वजीर आला पंजाब थे। साबिक वजीर आला पंजाब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ बैंक अकाउंट्स और मशकूक ट्रांजैक्शंस की इंक्वायरी 1 जनवरी 2018 में शुरू हुई। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कराची गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, एडिशनल SHO की शहादत का मामला। ईस्ट पुलिस ने मुकाबले के 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के आगे गुलिस्तान जौहर में बात जो है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड पुलिस ने रात कह सकते हैं मुकाबले के 4 मुकदमात दर्ज कर दिए। 3 मुकदमात जो गुलिस्तान जौहर और 1 मुकदमा फरीदाबाद थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल अज़काम और कत्ल मुकाबले, गाड़ी छीनने, गैरकानूनी असला और इंसानी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस की मजीद जो छानबीन जारी है और इसके बाद जो हिंदुस्तान जौहर में सिलसिला भी मजीद जारी करना पड़ेगा। सही। शायद ये बताएगा 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब ये वाकया पेश आया, उसके बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और जिस तरह से आपने भी बताया कि कानूनी गैर कानूनी असला, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं, अब तक कुछ पेशरफ्त हो चुकी है? मुल्ज़िमान के हवाले से कुछ पता लग सका है? जी बिल्कुल, मुल्ज़िमान के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं है ये, लेकिन स्नैप चेकिंग के सिलसिले जारी, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। रात तक जो है जगह जगह पे छापे मारे गए, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान को पकड़ने में पुलिस जो है नाकाम नजर आ रही है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज।
और कराची वालों के मसाइल कम ना हो सके। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे से 15 घंटे तक पहुंच गया है। कराची में लोड शेडिंग का बुरा हाल है। कराची वालों के मसाइल कम नहीं हो रहे हैं। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे से 15 घंटे तक पहुंच चुका है कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार हैं। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची में बिजली बंद है, जबकि स्कीम 33, गुलजार हिजरी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में रात भर बिजली गायब रही। गैस प्रेशर में कमी के बायस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। कराची वालों के मसाइल कम ना हो सके। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे से 15 घंटे तक पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार हो गए। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची में बिजली बंद है। स्कीम 33, गुलजार हिजरी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में रात भर बिजली गायब रही। गैस प्रेशर में कमी के बायस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर राना से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं, कराची वालों के मसाइल कम ना हो सके। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे से 15 घंटे तक पहुंच गया। बारिशों के बाद से रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेन का शेड्यूल बदस्तूर मुतासर है। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेन 1 से 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई, जबकि कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई। पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट। कराकोरम एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, सर सैयद एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस भी लेट हुई है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में बारिशें भी खत्म हो गई और तमाम मामूलात जिंदगी जो है मामूल पर आ गया है, लेकिन रेलवे का सिस्टम जो है वो अब तक ठीक नहीं हो सका है। महीनों से लेट है। मुसाफिर ट्रेनें जो बदस्तूर जो अपने शेड्यूल से लेट आती नजर आ रही है। आज भी कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें जो है 1 से 2 घंटे ताखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटा, पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, कराकोरम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, सर सैयद, शाह हुसैन एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा लेट भी आती हुई नजर आई। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी अपने मुकर्रर वक्त से 2 घंटे जो है 2 घंटे 25 मिनट आती हुई लेट नजर आई, जबकि मुसाफिर ट्रेनें लेट होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना और मुसाफिर मुसलसल यही वो शेख रशीद साहब से इल्तजा करते नजर आते हैं कि बातों के साथ साथ काम भी कर लें ताकि मुसाफिर ट्रेनें जो टाइम पर आ सकें और उनकी मुश्किलात में कमी हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। रहीम यार खान में जमीन का मामूली टुकड़ा एक और जिंदगी निकल गया। अराज़ी तनाज़े पर बच्चों के सामने उनकी मां को कत्ल कर दिया गया। कत्ल का यह अफसोसनाक वाकया थाना सदर कानपुर की हुदूद में पेश आया। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर कानपुर की हदूद में पेश आया, जहां पर बच्चों के सामने इनकी जन्नत जैसी मां को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 50 साल शमशाद बीबी की जमीन का तनाजा इसके रिश्तेदारों से काफी अरसा से चल रहा था। शमशाद बीबी अपने बच्चों के हमरा जब अपनी जमीन पर हल चलाने के लिए पहुंची तो हल चलाने की रंजिश पर इसके रिश्तेदारों ने मौका पर ही शमशाद बीबी को कत्ल कर दिया। बच्चों के सामने इनकी मां के कत्ल पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। थाना सदर कानपुर पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने खातून के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाकये में मुलव्विस मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुसलसल छापे जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा तालीम ननकाना साहब ने 9 तलबा और 1 टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर 4 तालीमी इदारों को सील कर दिया है। महकमा तालीम ने 4 तालीमी इदारों को सील किया। 2 सरकारी और 2 प्राइवेट स्कूल्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। मजीद जानेंगे मियां आमिर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, महकमा तालीम ननकाना साहब में भी 9 तलबा और 1 टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद 4 तालीमी इदारों को सील कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन राना इरशाद का कहना है कि जिला भर में 2 तालीमी इदारे और 9 तलबा में कोरोना वायरस होने की वजह से शाहकोट, ननकाना साहब, बुचेकी और मंडी फैजाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद और सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आसन सईद की हिदायत पर महकमा तालीम की टीमें रोजाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों में कोरोना वायरस और SOP को चेक कर रही हैं।
हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मुतासरा 2,95,333 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मुतासरा मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 हो गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,95,333 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उधर यूक्रेन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 26 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन में फौजी तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ, जिसमें एयरफोर्स यूनिवर्सिटी के कैडेट समेत 27 अफराद सवार थे। हादसे के फौरी बाद तैयारे में आग लग गई थी, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बुझा दिया गया। डिप्टी वजीर दाखिला का कहना है कि यह हादसा एक सदमा है। वाकये की तहकीकात जारी है। फौरी तौर पर तैयारे के तबाह होने की वजह मालूम न हो सकी। और अब आपको बताएं, महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया मजीद महंगी कर दी गई। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। महंगाई से पिसी हुई आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और महंगाई का जो बम है वो गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में जो है वो ज़बरदस्ती इजाफा कर दिया गया। अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो कुकिंग ऑयल में की कीमतों में 17 रुपये तक जो है कम अज़ कम इजाफा किया गया और बनास्पति घी की कीमतों में कम अज़ कम 4 रुपये तक का जो है इजाफा किया गया। इसके साथ साथ ही जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू में 9 से 20 रुपये फी शैम्पू जो है इजाफा किया गया। और साथ साथ ही अगर दूध की बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स पर तो उन पर भी जो है 12 से 13 रुपये जो है फी लीटर जो इजाफा कर दिया गया। उसके साथ साथ ही डिटर्जेंट्स जो हैं, बच्चों के खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया जो है उनकी कीमतों में भी इस वक्त इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है मुसलसल ये बयानात सामने आ रहे थे कि गरीब आवाम को जितना हो सका रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से जो है आवाम की फाइनेंशियल मुश्किलात में इजाफा हुआ था, लोगों को जीना जो था वो मुश्किल हुआ था। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो है महंगाई का बम गिरा दिया गया और जो लोग पहले ही जो बेसिक चीज़ें थी, जो अशिया खुर्द-ओ-नोश थी, उन तक लोगों की पहुंच जो थी वो काफ़ी मुश्किल हुई थी। लोगों के फाइनेंशियल हालात जो थे काफ़ी कमज़ोर हुए थे और इसके साथ साथ ही जो है आज हुकूमत की जानिब से फिर से जो इजाफा किया गया, इसके बाद लोगों की मुश्किलात में जो है वो कह सकते हैं कि मज़ीद इजाफा कर दिया गया। खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं वो लोगों की उम्मीदों के मरकज़ होते हैं कि वहाँ से उनको जो अशिया खुर्द-ओ-नोश है, जो बेसिक चीज़ें वो ज़रूरत ज़िंदगी की वो मुख्तलिफ रेट्स पर सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फिर एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में जो इजाफा कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। उधर मुल्तान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि रोजमर्रा अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी यही सूरत हाल है। आटा, चीनी, घी तो ढूंढते फिरते थे, लेकिन अब तो ये बना है कि महंगाई का एक और बम आवाम पर गिरा दिया गया है। घी, दूध, केचप और दीगर जो अशिया हैं ज़रूरियात की, उसमें भी बहुत हद तक इजाफा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। आवाम खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें इस हद तक इजाफा कर दिया गया है। हमारे लिए खासी दुश्वारी का सबब है। आवाम से ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, ये चीज़ें महंगी हो गई? 2 से 4 दफ़ा आए हैं। जब भी आते हैं इधर यूटिलिटी स्टोर पे, जब इनको कहते हैं भाईजान चीनी चाहिए, आटा चाहिए, तो वो दस्तयाब ही नहीं होता, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से भी बहुत महंगाई की वजह से ये बाहर हो चुकी हैं। तो लिहाजा जो आम रूटीन में जो चीनी हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, ये हमें हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए। आवाम इस वक्त गिला करते दिखाई देते हैं और उनका कहना यह है कि कीमतें बढ़ जाने की वजह से उनकी कुव्वत खरीद खासी मुतासिर हुई है और ज़रूरत है कि हुकूमत की जानिब से कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से अमली तौर पर इकदाम किए। अहमद काशिफ आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्द-ओ-नोश नायाब हो गई। एक हफ्ता गुजर चुका, स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से घी और चीनी मुहैया ना हो सकी। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान।
जी बिल्कुल देखें, मुल्क में महंगाई की लहर में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनमें भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो नायाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें घी, आटा और सबसे ज़रूरी चीज़ है चीनी, वो जो है यूटिलिटी स्टोर पेशावर में दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं हमारी, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो घी की कीमतें हैं वो 270 रुपये पहले फ़रोख्त होनी थी, जिसके बाद पंजाब से घी आना जो है वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से भी जो यहाँ पर शहरी हैं वो यहाँ पर आते हैं और मायूसी के आलम में वापस चले जाते हैं। इसी तरह क्योंकि पेशावर में गुज़िश्ता कई दिनों से चीनी की कीमतें थी उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और कीमत जो थी वो 110 रुपये तक जा पहुंची थी फ़ी किलो, मगर अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पर आते हैं, चीनी, आटा, घी का पूछ कर जो है वो वापस चले जाते हैं। इसी तरह अगर दालों की बात करें तो दालों की कीमतों में भी तकरीबन हम 5 से 10% जो हैं वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जो हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं, जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की किल्लत पैदा की जा रही है उसको पूरा किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सराफा बाजार के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अता हुसैन सराफा बाजार में मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी अता, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची के शहरी एक मसाइल से निकलते नहीं है तो दूसरे मसाइल में घिर जाते हैं। शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, जो सड़कों और गली मोहल्लों में कचरे के अंबार लगे हैं, जिसके बायस जो है शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त मैं लियाकताबाद के इलाके में वाक़ई सराफा बाजार के बाहर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे दरम बरम हुआ हुआ है। अगर मेरा कैमरा में नजर आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाए तो ये पूरी से मेन शारा है लियाकताबाद की और साथ ही इसके सराफा बाजार है। ये पूरी शारा और गलियों के अंदर सीवरेज का पानी जमा है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। रोड के ऊपर सीवरेज का पानी जमा होने से जो है ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई, जबकि जो दुकानदार हैं उनको भी शदीद परेशान इस पानी से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने बारहा कंप्लेनें की, बारहा शिकायतें की, 3 से 4 दिन हो गए सड़क के ऊपर ये पानी मौजूद है, लेकिन अब तक कोई मुतालिका महकमा जो है यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आया, जबकि सड़क पर मौजूद इस पानी से जो है ताफुन उठ रहा है, मजीद भी बीमारियां फैलने का हुसैन आप कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सराफा बाजार के बाहर जमा सीवरेज के पानी ने ताजरों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ताजर कहते हैं सीवरेज का पानी जमा होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। का पानी उबल रहा है और यहाँ ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आपके सामने ही देखिए। हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की, बहुत से जगहों पे दरख्वास्त दी, मार्केट्स वालों ने अलग से काम भी करवाया, हम लोगों ने अपने पास से मिला के, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी ना, जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो, तो हम सभी जानते हैं। सीवरेज वालों को बोला जा रहा है कि भाई आगे करते हैं, बोलते हैं नहीं। प्राइवेट भंगियों को कल करा गया, लेकिन उनसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर बड़ी मशीनरी आके लगेगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा। पिछले कुछ 15 दिन से 20 दिन से यहाँ पे गटर का पानी आया हुआ था, थोड़ा थोड़ा तादाद के अंदर था, जिसकी वजह से वाटर बोर्ड वालों को कंप्लेन भी की कि मैं कोई काम नहीं हुआ, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बुखार, सरदर्द, अमराज क़ल्ब, मलेरिया समेत 94 अद्वियात मजीद महंगी हो गई। मजीद जानेंगे सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, पहले दूध, फिर दही, उसके बाद फिर गंदम और फिर चीनी, और अब बारी अद्वियात की। और हुकूमत की जानब से अब 94 ऐसी अद्वियात हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, उनकी कीमतों में जो है 9 से लेकर 262% तक इजाफा कर दिया गया है। ये अद्वियात वो अद्वियात हैं जो कि करीब की ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते थे और वो खरीदते नजर आते थे। जो खरीदार जो आ रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर पर जो शहरी आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए अद्वियात के हवाले से, तो वो क्या कहते नजर आते हैं और क्या उनकी बहस और तकरार भी वगैरह भी देखने में आ रही है, या क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम तक जो बात पहुंची है ना, शुगर और हार्ट की मेडिसिन, वो सबसे ज्यादा मतलब उन्हीं को महंगा किया गया। बाकी का भी मतलब हमें सुनने में आ रहा है कि जो है ना बाकी भी मेडिसिन महंगी की गई हैं, जैसे बुखार की हो गई, जो मतलब बहुत ही ज्यादा रनिंग आइटम है।
और ये ना शॉर्ट होने वाली मेडिसिन थी, और ये ऐसे कहा जा रहा है कि शॉर्ट होती है ये वो, हालांकि ये शॉर्ट कभी भी नहीं हुई, और इनको जो है ना मतलब महंगा किया गया है। हालांकि इनको महंगा नहीं करना चाहिए, मजीद सस्ता करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब की जरूरत है, अमीर की जरूरत इतनी नहीं है इसकी। जो बता रहे हैं जो महंगी अद्वियात हुई कितनी फीसद महंगी हुई और जो आप खरीदार हैं? ये सर जो हम तक सुनने गए हैं ना 10 से लेकर 268% तक महंगी की गई है मेडिसिन मतलब है। जैसे कि आपने जाना कि ये वो अद्वियात हैं जो कि शॉर्ट थी ही नहीं, उसके बावजूद इसको महंगा किया गया और गरीब की पहुंच से दूर किया गया। महंगाई की सताई अवाम पहले ही जो दीगर जो टैक्सेस और दीगर जो चीजें जो महंगी लेने पर मजबूर थी, अब उनमें अद्वियात भी शामिल हो चुकी हैं। सजाद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ। दोनों फरीकैन ने तीसरी किस्त की हतमी मंजूरी से कबल बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने वर्चुअल मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। दूसरे जायजा मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए कोशिश की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद एक बार फिर से शुरू हुए थे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तीसरी किस्त जारी की जाएगी। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को खून के एहतियात देने के लिए पंजाब पुलिस भी मैदान में आ गई। गुजरांवाला पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे साजिद रवान की इस रिपोर्ट में। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार बच्चों को खून के एहतियात देने के लिए पुलिस लाइन में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा गुजरांवाला पुलिस के नौजवानों ने खून के एहतियात दिए। कोविड-19 की वजह से 7 माह के दौरान थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में बहुत कम तादाद में खून के एहतियात जमा हुए थे। पंजाब पुलिस के नौजवानों ने खून के एहतियात देते हुए कहा, हमने पुलिस का यूनिफॉर्म सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने के लिए पहना है और आज भी हम एहतियात देकर इंसानियत की खिदमत ही कर रहे हैं। अभी बच्चों को ब्लड दे के हम डोनेट कर रहे हैं तो हमें प्राउड फील हो रहा है एज अ एलीट फोर्स और एज अ पंजाब। कोरोना वायरस की वजह से थैलेसीमिया के जो बच्चों का ब्लड डोनेशन था वो सिलसिला कार रुक गया था, तो अब जो है ना पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेशन डोनेट कर रहे हैं। जिन्हें हर माह हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत है, अल्लाह करीम ने उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ब्लड पे लिख दिया। तो अल्लाह ने आज पुलिस वालों को उनकी ज़िंदगी का वसीला बनाते हुए अभी तक सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 250 के करीब बैग हो चुके हैं। सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना है कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के शिकार बच्चों को हर 15 दिन बाद खून की बोतल लगाई जाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस दफा बहुत कम तादाद में शहरियों ने खून के एहतियात दिए थे। लेकिन आज पंजाब पुलिस के नौजवानों ने खून के एहतियात देकर इन बच्चों की जिंदगी को उम्मीद की किरण दिखा दी है। इस तरह हर शहरी, समाजी और सियासी तंजीमों को भी चाहिए कि वो भी इन बच्चों के लिए खून के एहतियात दिया करें। इंसानी खिदमत के जज्बा के तहत गुजरांवाला पुलिस के जवानों की तरफ से दिए गए ये खून के एहतियात थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए जिंदगी की उम्मीद है। जरूरत इस बात की है कि गुजरांवाला पुलिस की तरह आम शहरी और समाजी तंजीमों की तरफ से भी इस किस्म के ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनाकाद जरूरी है, ताकि थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को खून की फराहमी बरकरार रहे। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। रोशनियों के शहर में बदअमनी के साए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली हैं। नीपा पुल के नीचे से एक शख्स की लाश मिली है, जबकि औरंगी टाउन महाजर चौक के करीब रोड से एक शख्स की लाश मिली है। लियारी नदी के रेक्सर लाइन पुल से रिक्शे में हाथ पांव मधी गन्स शॉट लाश मिली है। रोशनियों के शहर में बदअमनी के साए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली हैं। नीपा पुल के नीचे से एक लाश मिली, जबकि औरंगी टाउन महाजर चौक के करीब रोड से एक शख्स की लाश मिली। लियारी नदी के रेक्सर लाइन पुल से रिक्शे में हाथ पांव बंधी गन शॉट लाश मिली है। डस्का में FIA टीम पर तशद्दुद का मामला, मुलजिम भगाने पर 29 वापदा एहलकारों के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डस्का में FIA टीम पर तशद्दुद का मामला, मुलजिम भगाने पर 29 वापदा एहलकारों के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक्सीन की मौजूदगी में FIA टीम पर हमला किया गया। FIA टीम वापडा दफ्तर में लाइन सुपरिटेंडेंट को रिश्वत लेने पर गिरफ्तार करने गई थी। आपको बताएं, मुलजिम को वापडा मुलाजिमीन ने हथकड़ी समेत भगा दिया था। मोदी सरकार को मुआशी मैदान में भी बदतरीन पसपाई का सामने। मोटरसाइकिल की दुनिया की मारूफ कंपनी हार्ले डेविडसन ने
भारत में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी। इससे कबल टोयोटा ने भी मोदी का इंतहा पसंद देश छोड़ दिया था। अमेरिका की मशहूर जमाना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने बढ़ते हुए टैक्सेस के बायस भारत में अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी हैं। चंद हफ्तों कबल गाड़ियां बनाने वाली बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी टोयोटा ने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस से तंग आकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। हार्ले डेविडसन और टोयोटा ने भारत से अपना कारोबार मुंतकिल करने को नरेंद्र मोदी की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने की कोशिश के लिए धचका करार दिया जा रहा है। जापान एक और समुद्री तूफान की लपेट में आ गया। तूफानी लहरों और तेज बारिशों रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताकतवर समुद्री तूफान डोल्फिन जापान के साहिली इलाकों से टकरा गया, जिसके बायस मशरकी और शमाली जापान के मुतादिद इलाके मुतासर हुए। समुद्री तूफान के बायस बहरुल काहिल के रुख पर वाक़ जापानी इलाकों में तंदुतेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई। समुद्री तूफान के बायस मिट्टी के तोदे गिरने, सैलाब आने, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का भी खदशा है। तूफान ने मुल्क के मुताबिक इलाकों में निजाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब के खतरे के पेश नजर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात जारी कर दिए गए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेरियन जॉन्स को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का निराले अंदाज में खैराज तहसीन। आईसीसी ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें उनके करियर के यादगार लम्हात को एक्सपन किया गया है। वीडियो में डीन जॉन्स के करियर के दौरान ली गई यादगार तस्वीर भी शामिल हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।